We have done the introduction of chapter 4, carbon and its compounds, class 10 science, regarding the allotropes or the forms in which the carbon exists. Then we have introduced you with the tetravalency. This is the important property that carbon atomic number is 6. Therefore, it has electronic configuration 2, 4 and 4 valence electrons are there in the outermost layer. And it is therefore tetravalent. The valency is 4. Valency is 4, then it can make only the covalent bonds. This is the condition, that it can make covalent bonds. Now, afterwards, we have studied about the ways in which other elements also make covalent bonds. They make single bond, double bonds, like that. Here, carbon bond formation is shown. It keeps its 4 electrons around itself so that other elements can bond from here. And single bond is made by the electron pair. One electron pair will create a single bond in between them. Formation of covalent bond. Here, hydrogen is shown as the example. Hydrogen is having one electron in the outermost, so valence electron shared this. It has one pair, so one covalent bond is formed. Two covalent bonds oxygen is making because its valency is 2. Okay, so 2 covalent bonds are formed by the oxygen. Nitrogen is valency is 3, so it makes 3 covalent bonds with other nitrogen. So this way the bonding can be made depending on how much number of electrons are paired. What are the number of shared pair? On the basis of that, we get bonds. So nitrogen is sharing 3 pairs. So therefore, 3 bonds are formed between 2 nitrogens. This we have discussed. Then other structures like hydrogen molecule, fluorine molecule can be made in this way as well, writing the electron in their orbitals only and sharing the electron in the orbitals. When orbitals are shared, the 2 pairs of fluorine, if I take fluorine as an example and I make the small circle as the nucleus of fluorine and make orbital, and in that outermost shell only I draw. आउटरमोस्ट शेल बनाकर उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ शो कर दूं और उसको एक एक की जरूरत और है अपना शेल पूरा करने के लिए, तो इस वजह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इसके जो टेक पार्ट कर रहा है बॉन्डिंग में, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर इसका यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट कर रहा है, दूसरे वाले का ये आएगा, दूसरे वाले में भी कितने होंगे इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मतलब इस वाली फ्लोरीन के शेयर्ड पेयर के अलावा एक और वो लाएगा और उसमें भी कितने होंगे, अदर देन दिस इलेक्ट्रॉन इट हैज 7, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फ्लोरीन इज विच एटॉमिक नंबर, हैविंग 9 एटॉमिक नंबर। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,7, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। तो ये शेल वाला फॉर्म है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शेल फॉर्म में भी आप बना के इस वे में भी आप बनाकर दिखा सकते हो। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का भी बताया है, यहाँ टेट्राफ्लोराइड का बताया है, 4 फ्लोरीन जोड़े हैं एक कार्बन से, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं आउटर मोस्ट में, चाहे तो वो 4 फ्लोरीन एटम से भी 4 फ्लोरीन एटम से एक कार्बन पेयर करके टेट्राफ्लोराइड भी बना सकता है, बनाता ही है। यहाँ पे देख रहे हो आप CF4 बनाया है उसने,
ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको क्या कहना चाहती हूँ मैं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। नाउ Yes. Yes, मीथेन, ma'am. इथेन मॉलिक्यूल ये भी दे रखा है यहाँ, ये आपको मैंने बता ही दिया था, जनरल है ये। कल मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताने के बाद क्या होते हैं सैचुरेटेड? सैचुरेटेड ऐसे होते हैं एल्केन्स जिनमें सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड। क्या होंगे? क्लियर हो रहा है? वो क्या Yes, होंगे? ma'am. सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। क्लियर हुआ? देन अनसैचुरेटेड, नीचे अनसैचुरेटेड का भी दिया हुआ है, इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मैंने बताया था मिसप्रिंट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा प्रोपीन में। प्रोपीन हो, इथीन हो, ये क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बॉन्ड्स, इनको बोलते हैं एल्कीन्स। और अगर ट्रिपल बॉन्ड्स की होंगी तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइंस। एल्काइंस विल बी ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में कैसे बॉन्ड लगेंगे? ट्रिपल। एल्कीन्स में क्या लगते हैं? डबल। एल्कीन्स क्या है? डबल। एल्काइन क्या है? ट्रिपल। एल्काइन भी नीचे दिया हुआ होगा, and you see alkyne with triple bond, alkyne with triple bonds. Then isomerism, next topic बताया था isomerism। फॉर्मूले सेम होने की वजह से ब्यूटेन के हम पर उसका स्ट्रक्चर अगर बदल सकें, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स आइसोमर। तो एंड नॉर्मल ब्यूटेन की जगह आइसोब्यूटेन बन जाती है, आइसोमेरिक ब्यूटेन। इट इज अ सिंगल ब्रांच आइसोब्यूटेन। सिंगल ब्रांच हो गई ब्यूटेन में, वो आइसोब्यूटेन बन गई। क्लियर हुआ? डबल ब्रांच, मान लो अगर हम डबल ब्रांच लगा दें पेंटेन का, अगर हम 3 आइसोमर बना सकते हैं पेंटेन के। कैसे? एक लास्ट वाले ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करके बीच वाले मिड वाले कार्बन पे लगा दो, तो ये बन जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर आइसोपेंटेन। अब नेक्स्ट वाली को भी उठा लो, इसको ऊपर लगाया था, इस वाली को नीचे लगा देना, ये ठीक है। इससे ही ये बन गई बाद में। इसमें एक तरफ ब्रांच लगाई है सेकंड कार्बन पे, और उसके बाद ये वाला उठाकर भी फिर नीचे लगा दिया, तो ये बीच में सिर्फ 3 रह गए, एक ऊपर लग गया, एक नीचे लग गया ब्रांच। ये वाली जो पेंटेन हो जाएगी नियो हो जाएगी, नियो पेंटेन। क्लियर हुआ? इस तरह से हम आइसोमर बनाते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फंक्शनल ग्रुप्स कल बताए थे, आपसे बोले थे फंक्शनल ग्रुप्स अब लिख के लाएंगे, ये पूरा चार्ट लिखेंगे, प्लस क्या कहा था कि इनके डायग्राम या इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ब्रोमोइथेन, क्लोरोमीथेन, मीथेनॉल, इथेनॉल, इनके ओपन करके स्ट्रक्चर बनाने हैं, ये बोला था। जैसे अगर मैं C2H5OH बनाऊं तो इथेनॉल है, इथेन से बनी हुई अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप OH होता है, ये बताया था कल। कैसे बनेगा इथेनॉल का फॉर्मूला? 2 कार्बन को जोड़कर आपस में सिर्फ एक जगह क्या लगाना पड़ेगा? OH ग्रुप, बाकी सब जगह क्या लगेगा? H5 ही लगेंगे। 2 कार्बन हम लगा चुके हैं C2 का फॉर्मूला ये है C2H5OH, बाकी जगह हाइड्रोजन्स लगेंगे क्योंकि हाइड्रोजन्स कितने हैं? 5 है, हो गए 5 हाइड्रोजन्स, 3 and 2 5, और यहाँ पर एक जो बॉन्ड बच रहा है उसमें हम अल्कोहल ग्रुप लगा देंगे, ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? इथेनॉल। क्लियर? ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने को आपको कहा था,
ये भी कहा था एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स है। ये कैसे ग्रुप है कि इनमें सब में कार्बन आता है, एंड यू कैन सी इट इन द फॉर्मूला एज वेल। फॉर्मूले में दिख रहा है आपको कार्बन आ रहा है। तो यानी कि इसमें जब भी हम कोई भी कंपाउंड बनाएंगे जिसमें ये ग्रुप लगेगा, फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो उसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा उसी कंपाउंड का। जैसे कि मैं अगर इथेनॉल बनाऊं, इफ आई वांट टू फॉर्म एन इथेनॉल, अभी तक मैं ऑल कर रही थी क्योंकि अल्कोहल का समझाया था, तो OH का सफिक्स लगता है OL, ऑल। अल्कोहल में भी OL होता है, OL लगाते हैं लास्ट में। अब मैं अल बोलने लगे कि एल्डिहाइड का अल लगाना पड़ता है लास्ट में सफिक्स, नेम्स एंड्स विद अल। मुझे इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल बनाना है, तो अभी जैसे ही मैंने 2 कार्बन का बनाया, ये भी 2 कार्बन का ही है। फॉर्मूला क्या है इथेनॉल का? CH3CHO है। कैन यू सी? एक कार्बन तो हमें CHO ग्रुप बनाने में ही लग जाएगा, यानी एक कार्बन इसका एंडिंग कार्बन। अब 2 है तो दोनों ही एंडिंग है, ये भी एंडिंग है, ये भी एंडिंग है, किसी में भी लगा सकते हैं, बट इट ऑलवेज, एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज एट द टर्मिनल पोजीशन। तो एक कार्बन को मैं यूज करूंगी, कहने का मतलब ये है जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे वो ब्रांच में से ही जो भी कंपाउंड बनेगा उसका ही कार्बन इन्वॉल्व करके बनाया जाता है। तो नेक्स्ट कार्बन जो बच गया उसके ऊपर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, CH3CHO। ये इसका किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इथेनॉल का। क्लियर हो रहा है कैसे बनाया इथेनॉल? Yes, ma'am. क्लियर? ओके। अब CHO हो गया, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके बाद कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। If anyone wants to in the class wants to make ethanoic acid, is most welcome. You can draw and you can draw it here. इस पेज पे व्हाइटिश पोर्शन पे कोई एक बच्चा मुझे ये बना के दिखाए इथेनोइक एसिड। Do anybody want to try it? Try to draw it. मैंने अभी अल्कोहल बताया, वैसे ही आपको 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड बनाना, इथेनॉल भी बताया अभी। गो फॉर इट, गो फॉर मेकिंग इथेनोइक एसिड। कोई भी बना सकता है, एनीवन। लेट इट बी रॉन्ग ओनली, कोई बात नहीं, रॉन्ग आपको लग रहा है रॉन्ग बनाओगे तो रॉन्ग ही बना दो, पर ट्राई करो बनाना। ड्रॉ इन योर कॉपीज एंड शो मी। अगर यहाँ नहीं बना पा रहे हो तो कॉपी में बनाकर मुझे कैमरे में दिखाओ इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा। हाउ विल इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड? क्योंकि आपको पता है मैं आपसे ब्लैक बोर्ड पे भी बनवाती हूँ, जब तक आप नहीं बनाओगे जब तक यू विल नॉट नो। ठीक है, show me on your video and show me. If you have drawn in your copy, you can show me in your वीडियो ऑन करके मुझे कॉपी पे इथेनोइक एसिड बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। हाउ विल यू फॉर्म? यस, ड्रॉ इट, राइट इन योर कॉपी। सेम वे में जाओ, 2 कार्बन लगाने हैं, एक कार्बन को COOH ग्रुप ही बना देना है। एक कार्बन को आप COOH ग्रुप बना दोगे और दूसरे कार्बन पे H3 लगा देंगे, 3H लगा देंगे। बनाओ, कौन बना रहा है? शो मी। दिव्या ने बनाया है। यस, वेरी गुड दिव्या, स्ट्रक्चर इज करेक्ट। व्हाट इज शी शोइंग? एक कार्बन और दूसरे कार्बन को कनेक्ट कर रखा है और डबल बॉन्ड से O ऊपर डाला है, एंड एवरीवन कैन सी दिस, एंड OH लगाया है इधर, और इधर तीनों हाइड्रोजन्स पूरे कर दिए। यही तो मैं बोल रही थी आपको, एक कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाने में बनाने में यूज हो जाएगा। करेक्ट दिव्या,
दिव्या हैज मेड करेक्टली। एक कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप लगाने में यूज हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे आप हाइड्रोजन्स लगा दो। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक। क्लियर हुआ? Yes, सबको ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. So now वंश have you also drawn? सभी बच्चे बनाएंगे अपनी कॉपी में। अब तो बना दिया मैंने, यहाँ पर भी बना के दिखा दिया। अब आप अपनी कॉपी में सभी बना लो इसको, क्योंकि जितनी बार हम बनाते हैं ना उतना ही हमें आता है। हम जब तक इन फॉर्मूले से डरते रहेंगे, इनको नहीं बनाएंगे, जब तक हमें कभी भी कार्बन के कंपाउंड्स नहीं आ सकते। ये पूरा चैप्टर ही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे है। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कैसे होते हैं इनके स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने को आएंगे, स्ट्रक्चर्स के नेम लिखने को आएंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे, उनमें हेजिटेट होगे तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी इस चैप्टर में। तो यस, मेक इट एवरीवन विल शो मी। बना कर कॉपी में मुझे सारे बच्चे जब तक नहीं शो करोगे तब तक क्लास यहीं रहेगी। जल्दी से। और ये वीडियो फिर YouTube पे भी जाएगी, पता चलेगा कि 10th में कितने बच्चे मैम को वर्क शो कर रहे हैं। Ma'am, please. मैम किसका बनाना है? व्हाट? मैम किसका बनाना है? इथेनोइक एसिड वंश ने भी बना लिया है। श्रीश, शो मी। मैम एक सेकंड। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? वंशिका, शो मी। बनाओ। आकांक्षा, टीना ने भी बना लिया Yes, है। दिया, गोविंद, मेक इट इन योर कॉपी। आप कॉपी लेके बैठे हो, रफ लेके बैठे हो, जो भी है। 2 कार्बन्स बनाने हैं, उन्हें साथ में जोड़ना है, जिसमें से एक कार्बन पे आप डबल बॉन्ड O और OH लगाओगे। ये क्या, कौन सा ग्रुप है? दिस इज इथेनोइक, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका जनरल वे में ऐसे लिख देते हैं COOH। तो पर इसमें से एक जो CO ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड में होता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हो। दूसरी जो OH होती है वो सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, इट इज इन द सिंगल बॉन्ड। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ऐसे बनता है। और लास्ट में गोविंद ने भी बना लिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर 3 H लगा देते हैं नेक्स्ट वाले पे। दिस इज इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन से बना हुआ एसिड। आकांक्षा, हैव यू मेड? रिया, हैव यू मेड? शो मी। प्रियांशी, रिया, अक्षत हैव ऑल मेड इट। लास्ट ग्रुप बचा है कीटोन। कीटोन ग्रुप में सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O। इसके इधर भी एक बॉन्डिंग है, इधर भी एक बॉन्डिंग है, और ये लगता है बीच में। इट इज ऑलवेज मिडल। ये हमेशा मिडिल पोजीशन में होता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर अगर हम ब्यूटेनॉन बनाएं, अगर 4 कार्बन का हम ब्यूटेनॉन बनाएं, ठीक है, लेट अस सपोज वी आर मेकिंग ब्यूटेनॉन, तो हम किसी भी एक मोस्ट प्रोबेबली सेकंड नंबर पे लगा के बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट के बाद हम नेक्स्ट स्मॉल नंबर की पोजीशन चुनते हैं। तो फर्स्ट के बाद नेक्स्ट स्मॉल पोजीशन क्या होती है? 2 होती है, और हमें लगाना ये बीच में ही है। तो हम कीटोन बना रहे हैं ब्यूटेनॉन, तो हम सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं। और फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा लगाने की बात ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लेस नंबर देना होता है। जब हम बॉन्डिंग करेंगे, जब हम इनकी नेमिंग पढ़ेंगे, तब भी हमें पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगे हुए हैं वहां से उनको नंबरिंग दी जाती है, ताकि सबसे छोटे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लाई करें। अब इसका सबसे छोटा नंबर सेकंड ही हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट पे नहीं लग सकता। इट इज नॉट अ टर्मिनल ग्रुप, इट इज इन मिड, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब ब्यूटेनॉन ऐसे बनेगा। अब आपने ये ग्रुप तो लगा दिया सेंटर में सेकंड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन से वैलेंसीज पूरी कर दो इसकी, फुलफिल द वैलेंसीज ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको कैसा कंपाउंड मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको CH3। आर यू गेटिंग? यहाँ पे मिलेगा आपको CH3, यहाँ पे मिल रहा है आपको CH2, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मिल रहा है आपको CO, क्या मिल रहा है? CO ग्रुप है। यहाँ पे आपको मिल रहा है CH3, क्या मिल रहा है?
समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग? CH3 CH2 CH3 बीच में CO है। ये मैंने कंबाइंड कंडेंस फॉर्म में लिखी है। इसको और भी कंडेंस लिखा जा सकता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूले में। क्या लिखा हुआ है? इस तरफ वाले को मैं क्या बंद करके लिख सकती हूँ? C2H5 लिख सकती हूँ कि नहीं? C2H5 Yes, CO और फिर CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो। क्लियर हो रहा है? तो ब्यूटेनोन मैंने ऐसे बनानी है। आई हैव टू मेक ब्यूटेनोन लाइक दिस। यू कैन मेक इट ब्यूटेनोन इन योर कॉपीज एज वेल। ब्यूटेनोन बना लो कॉपीज में। और जो बची हुई हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एक एक कंपाउंड बच रहा है, मिथेनॉल बच रहा है, ये आपको खुद बनाना होगा। मिथेनॉल बच रही है, ये आपको आज के होमवर्क में बनानी होगी खुद। मिथेनोइक एसिड बच रहा है, ये आपको, तो आगे आगे वाले सब आपको खुद बनाने हैं। मैंने पीछे पीछे जो दिए हैं वो बनवाए हैं। समझ में आ रहा है? इस चार्ट में दिए गए मिथेनॉल और मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन, ये आपको आज के होमवर्क में बनानी है। एंड वी हैव डिस्कस दीज 4. इज इट क्लियर? yes, ma'am. So with this, I'm ending the class. I hope you have understood functional groups and how we attach them. एक मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको डिस्कस नहीं किया, बट इट इज वेरी सिंपल। हेलाइड ग्रुप। हेलाइड ग्रुप में क्या होता है? हेलोजन की फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, इनको डायरेक्टली, इनकी कितनी वैलेंसी है सबकी? सबसे पहले हमने देखा था कि इनकी वैलेंसी क्या है? 1 है। तो अगर मुझे ब्रोमो इथेन बनाना है, ब्रोमो इथेन, तो मैं 2 कार्बन लूंगी और 2 कार्बन पे मैं एक हाइड्रोजन की जगह बस ब्रोमीन ग्रुप लगा दूंगी, क्योंकि ब्रोमीन की वैलेंसी और इसके हर मेंबर की वैलेंसी जो हेलोजन्स होते हैं उनकी 1 ही होती है। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं लगा सकती हूँ ब्रोमीन ग्रुप। समझ में आ रहा है? बाकी की जगह मैं क्या लिख दूंगी? HH से वैलेंसीज पूरी कर दूंगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ब्रोमोइथेन, C2H5Br। इट विल बी फॉर्म्ड, इसको मैं C2H5 बोल सकती हूँ, इथेन ग्रुप C2H5, और ब्रोमीन लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसीलिए आपको अब इसका भी एक और बनाना है। तो यू हैव गॉट दीज 5 नाउ। क्लोरोमीथेन बनानी है, मिथेनॉल बनाना है आपको, मिथेनॉल बनानी है, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन। क्लियर? Yes, ma'am. ये सारे फर्स्ट मेंबर्स ही हैं बेटा। These all are first members of these kind. Why? Because आप सोचो, प्रोपेनॉन से छोटा कोई कीटोन हो सकता है क्या? Can any ketone be more smaller than propanol? No, क्योंकि ma'am. हमारा CO ग्रुप जो है बीच में ही लग सकता है, तो उसको, अब किसी बीच क्या होता है? 2 लोगों का बीच होता है, तो आसपास मतलब कितने होने चाहिए? 2 कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि मिड तो हमेशा हमेशा यही होगा, मिड जिसके इधर एक वैल्यू हो और जिसके जस्ट आगे एक वैल्यू हो, उसी को मिड बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे छोटा कीटोन जो होता है वो कौन होता है? प्रोपेनोन ही हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोपेनोन। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो अब आप ये कर लोगे। ये बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी चीजें बना पाओ, अपने आप से आप बना लो, क्योंकि वही आपकी लर्निंग है। आपने आज जो सीखा आप बना पा रहे हो, कर पा रहे हो उनको। ठीक है? तो वो बनाओ और इमेज मुझे भेज सकते हो आप व्हाट्सएप पे, नहीं तो कल आप शो करोगे अपनी, ऐसी वीडियो में शो कर सकते हो क्लास में। ठीक है? इज इट क्लियर? दिस इज योर होमवर्क। Okay, ma'am.
So I'm ending the class. यहाँ पर मैं class